Good morning, everyone. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you all? Yes, sir. Sir, fine. So good. Very Very good. Beta, start your videos, please, all of you. Please start your videos. Very nice. बेटा कोई डिफिकल्ट चैप्टर मुझे बताओ, किसी डिफिकल्ट चैप्टर का नाम लो. Sir, Sir, algebraic factorization. expression. Factorization. फैक्टराइजेशन. एक मैंने चैप्टर, बहुत डिफिकल्ट चैप्टर का नाम सुना अभी अभी. फैक्टराइजेशन. और कोई? अच्छा, वो एक Sir, इजी algebraic चैप्टर. expression. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. वाह, क्या बात की. कोई इजी चैप्टर का नाम बताना. Sir, Sir, rational number. sir, algebraic. Probability. Sir, algebraic के अलावा सारे easy हैं. Sir, square and square root. Very good, very good, very good. Probability. Very nice. Sir, coordinate geometry is an easy chapter. Which coordinate geometry? Yes, coordinate geometry is also easy. Sir, polygon also. Polygons also is very easy. Sir, quadrilateral. Quadrilateral is also very easy. Very nice. Sir, cubes and cube roots. Cubes and cube roots. मतलब mostly Sir, chapters easy ही हैं. कुछ एक Sir, दो बस हैं थोड़ा परेशान, sir दो chapter हैं जो tough. जो थोड़े से टफ हैं. हाँ? Yes, sir. वो Sir, दो linear हैं. equation और algebraic expressions. And factorization. नहीं sir, factorization easy है. Easy है. चलो, बहुत अच्छी बात है. Sir, all are easy. All are easy. Very good. चलो ठीक है, फिर मैं I am giving you a worksheet of the chapters which you find difficult. थोड़े बहुत, मतलब ज्यादा नहीं. ठीक है. Good morning, sir. आप लोगों को गुड मॉर्निंग बेटा. आप लोगों को कोई डाउट है तो मुझे बताइए पहले तो. एनी डाउट? हाँ जी. No, sir. नो डाउट. कोई डाउट नहीं, सच्ची में कोई डाउट नहीं है. No, sir. बहुत अच्छे यार. So I'm giving you a worksheet of MCQs. MCQs दूं या बेटा, जैसे long answer, MCQ. short answer questions. MCQs. MCQ. Sir, अच्छा, नहीं sir, मतलब short answer questions. Sir, नहीं sir, MCQs में solve करना easy होता है sir, कुछ tough दीजिए. कुछ टफ दें. अच्छा भाई, ठीक है, कुछ टफ ढूंढते हैं फिर. Sir, I have Sir, a all doubt in factorization. QRTs. QRTs. बेटा हाँ, yes, Karthik. I have a Someone said I doubt. have a doubt. Yes, Karthik. Sir, you gave me a question, sir. 2p square upon 25 minus 32q square. एक second, let me write the question. Just a minute. Yeah, what was the question? Sir, 2p square upon 25 minus 32q square. Minus 32q square. Yeah, we have to factorize this. All of you, please try this. Factorize. Okay. Try this, everyone. Rise. I'm giving you 40 seconds to try this. All of you.
हो जाए तो मुझे बताना, आंसर मत बोलना, बस इतना बता देना हो गया सर, आई हैव डन। बेटा वीडियो से स्टार्ट कर लो बच्चों प्लीज, बिना वीडियो से कोई मजा नहीं आता पढ़ने का पढ़ाने का। ऑल ऑफ यू प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज स्टार्ट योर वीडियोस। Okay, sir. मुझे नाम लेना पड़ेगा वरना, प्लीज कर लो, बच्चों के नाम लेके कहना पड़ेगा। कनिष्का, ध्रुव कुमार, आयुष अग्रवाल, एंजल, अनुष्का, एवरीवन। प्रांजलि बेटा हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बेटा, प्रांजलि। भाव्या त्यागी प्लीज स्टार्ट योर वीडियो। सक्षम साहू, So just a second. Sir, done the question. done the question. अच्छा, those who have done they can please send their answer in the chat box. Can you send your answer in the chat box? हाँ जी बेटा, हो गया। Yes, sir. ओके, एक बच्चे ने आंसर सेंड किया है, उस बच्चे का नाम है आलिंद टंडन। टंडन साहब, Yes, sir. टंडन साहब आपने क्या कॉमन लिया है ये? यू हैव टेकन Sir, 2 स्क्वायर कॉमन। Sir, 2 square. 2 स्क्वायर कॉमन कहाँ आ रहा है बेटा? Sir, Sir, send the answer. यस, गड़बड़ कर दी बेटा तुमने, आयुष, थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। यू आर वेरी नियर टू द करेक्ट आंसर। आलिंद, योर आंसर इज नॉट करेक्ट। आयुष, थोड़ी सी गड़बड़ है। देखिए ऑल ऑफ यू, फैक्टराइजेशन के मैंने 5 स्टेप्स बताए थे और मैंने कहा था हमेशा फॉलो करना, फायदे में रहोगे। 5 स्टेप्स हमेशा फॉलो करोगे तो फायदे में रहोगे। फर्स्ट स्टेप भूल गए बेटा। पहली बात तो यहाँ पर आप लोग सीधे ये सोच रहे होंगे आइडेंटिटी यूज हो सकती है, लेकिन हो नहीं पा रही है। कौन सी वाली a प्लस बी, a माइनस बी, ये सोच रहे हैं ना बैठ के? Sir, first यार बहुत 5 पास। square. फर्स्ट स्टेप ये है कि पहले तो अगर कुछ, जितनी भी टर्म्स हैं, 2 टर्म है, 4 टर्म है, 3 टर्म है, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर कुछ कॉमन आ रहा है फ्रॉम ऑल द टर्म्स, प्लीज टेक इट कॉमन फर्स्ट। कैन वी टेक 2 कॉमन इन द 2 टर्म्स विच आर देयर Yes, इन द sir. क्वेश्चन? 2 इज कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर अपॉन 25 माइनस 16 क्यू स्क्वायर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? यहाँ No, sir. नो No, डाउट। sir. अब लगेगी आइडेंटिटी। देखो बेटा, मेरी आंखों से देखना, p अपॉन 5 का होल स्क्वायर माइनस 4q का होल स्क्वायर, ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बताओ
बताइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया सारे बच्चों को? Yes, sir. देख गया। तो ए की जगह है p/5, बी की जगह है 4q। ठीक है, क्या बनेगा? ये क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी Sir, स्क्वायर क्या होता है? 5 minus 4q. p/5 प्लस 4q, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी बोले तो p/5 माइनस 4q। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका कोई काम नहीं है, आप हटा सकते हैं इसको। सो आंसर फाइनली योर आंसर विल बी 2 into p/5 plus 4q. Understood, Kartikeya and everyone else? Have you all understood the question? Yes, sir. पता है बेटा, हटा दें? समझ में आ गया सबको? Excuse me, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir, Om. please wait, I am copying. Sorry Sir, बेटा. in the second step, One by one. हाँ, Sir, एक I am एक सेकंड। writing ओम it. ओम एक सेकंड रखो बेटा। ओम। यस कार्तिकेय। Sir, I am writing it, so please wait. ओके ओके ओके। ओम बताइए क्या कह रहे हैं? sir, in the second step, sir, आपने जब 32 को divided by 2 करा तो sir आपने 25 को क्यों नहीं करा? बेटा 25 तो डिनोमिनेटर में, उसको क्यों डिवाइड करूंगा मैं 2 से? न्यूमरेटर में से कॉमन लिया जाएगा, समझे? Okay, sir. जब हम न्यूमरेटर में से कोई चीज कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर को 2 से डिवाइड करते हैं, नॉट द डिनोमिनेटर। ठीक है? Okay, sir. Yes, sir, done. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं ऐसा ही टाइप का एक क्वेश्चन और देता हूँ, सिमिलर, मतलब नॉट सेम, सिमिलर टाइप। दे दें बेटा? एक Yes, ने sir. Okay, sir. ये लीजिए। ठीक है, 3x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 1/27 जी। 3x to the power 4 minus 1/27। करिए फैक्टराइज। Is anything common here in both the terms? Yes, sir. What 3. is common? 3 is common। Yes, sir. जी, हो गया बच्चों? बच्चे कम हैं यार, 3 सेक्शन के Yes, sir. कंबाइंड हैं, Sir, फिर भी कम है। yes, sir. डन। अभी अभी सुनते हैं बेटा आंसर अभी देखते हैं। बच्चे कम क्यों हैं? ऑफलाइन चले गए क्या बच्चे? सर ऑफलाइन। ऑफलाइन गए? बहुत सारे बच्चे चले गए ऑफलाइन। Sir, वैसे because tomorrow is exam. No, sir. Day after tomorrow. डे आफ्टर टुमारो यू हैव योर रीजनिंग एग्जाम। Yes, sir. Reasoning. Yes, sir. Yes. अरे वाह, ऑल द बेस्ट। Thank you, sir. यस सर, थैंक यू।
चलो बेटा, किसी बच्चे ने भेज कर लिया हो तो प्लीज सेंड योर आंसर इन द चैट बॉक्स। Sir, send. आयुष बेटा, नॉट करेक्ट, थोड़ी सी गड़बड़ है। मतलब यू यूज योर ब्रेन वेल, बट थोड़ा सा एक एक बहुत जरा से कॉन्सेप्ट में गड़बड़ हो गई। Bhavya Tyagi has also sent the answer. Bhavya, your and Ayush's answer is same, but it is not correct. Very near to the answer, but starting में concept में थोड़ी सी गलती हो गई। We can give our reasoning exam online also. It will be online only. Your reasoning exam will be online, not offline. Reasoning and I think GK. GK है आपका क्या? No, पता नहीं, sir. I am not sure. मतलब No, reasoning तो online No, होगा sir. ही। No, sir. Yes, sir. Sir, हाँ GK is not online. हाँ, तो रीजनिंग ऑनलाइन होगा, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, बाकी एग्जाम्स आपके ऑफलाइन होंगे। चलो बेटा बताऊं मैं, ठीक है बताता हूँ। आप में से कई बच्चों ने एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है इस क्वेश्चन ने। वो क्या करा है, देखिए आपने देखा 3 कॉमन है, आपने 3 कॉमन लिया, देखिए ऐसे कॉमन लिया, मैं बताता हूँ कैसे। ऐसे 3 कॉमन लिया, x⁴ माइनस 1/9। कितने बच्चों ने ऐसी करा? Sir, I have done like this. ये तो गड़बड़ हो गई, ये गलती हो गई Yeah. बेटा। गुड, Sir, आई I have लाइक इट written. दैट मोस्ट ऑफ यू आर एक्सेप्टिंग कि हमने ऐसे करा है, बट ये गलत है। वेरी गुड, आई लाइक इट Sir, I have व्हेन written 1 व्हेन यू upon टेक द 81. रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ बेटा, 1 अपॉन व्हाट यू हैव रिटन Sir, कार्तिकेय? 1 upon 81. यस यू आर राइट, दिस इज करेक्ट, 1/81 आएगा, नॉट 9। आप लोगों ने पता है इधर आपने क्या गलती करी, आपने न्यूमरेटर में से 3 कॉमन लिया, फर्स्ट टर्म में से तो न्यूमरेटर में से 3 कॉमन ले लिया, और सेकंड टर्म में से आपने डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन ले लिया। ऐसा हो सकता है? ये तो गलत हो गया, नहीं हो गया? अगर कॉमन न्यूमरेटर में से ले रहे हैं तो दोनों जगह न्यूमरेटर में से ही कॉमन लेंगे ना, एक जगह न्यूमरेटर में से और दूसरी टर्म में से आप डिनोमिनेटर में से थोड़ी कॉमन ले सकते हैं। अब ये भी पिछले क्वेश्चन में किसी ने ये बात बोली थी तो मैंने बताया भी था, ओम ने शायद कुछ बोला था। तो दोनों टर्म्स में से आप न्यूमरेटर में से ही कॉमन लेंगे या डिनोमिनेटर में से ही कॉमन लेंगे? डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लिया जा सकता है, लेकिन फिर आप दोनों जगह डिनोमिनेटर में से ही कॉमन लेंगे अगर ले रहे हैं। तो यहाँ हम न्यूमरेटर में से कॉमन लिया है 3 हमने। अब जब 3 न्यूमरेटर में से कॉमन लिया है तो यहाँ तो 3 है ही नहीं सेकंड टर्म में। बताइए न्यूमरेटर में 3 दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। लेकिन जबरदस्ती कॉमन लेना भी एक चीज होती है, वो भी किया जा सकता है मैथ्स में, जबरदस्ती भी कॉमन लिया जा सकता है। आपने एक बचपन से एक बात पढ़ी है, किसी फ्रैक्शन को अगर सेम नंबर से न्यूमरेटर में और सेम नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज होती है? नहीं होती है, सिर्फ फ्रैक्शन का रिप्रेजेंटेशन चेंज हो जाता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नाम की चीज सुनी हुई है आप लोगों ने? इक्विवेलेंट Yes, sir. फ्रैक्शंस, हाँ, तो ये वही तो है, ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वही तो करा मैंने यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर भी यही काम करता हूँ, देखिए कैसे। हमें 3 नहीं दिख रहा था, लेकिन हम 3 को पैदा करेंगे। कैसे पैदा करेंगे? ऐसे ही। डरने वाली बात नहीं बेटा, पहली बार ऐसा क्वेश्चन कराया आपने, ये सिलेबस में आपके एग्जाम में नहीं आएगा, डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन फिर भी दिस इज अ पार्ट ऑफ फैक्टराइजेशन, और अब बिल्कुल आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ये सब कुछ जो पढ़ा हुआ है उसी में से ही है। 3/81 क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन डरो मत, एग्जाम में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन। 3/81 बन गया ये, देखो 3/3 से मल्टीप्लाई करके। तो अगर ये 3/81 बन गया, यहाँ पर पहले हम लिख लेते हैं इस तरीके से, 3x⁴ माइनस 3/81, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 1/27 को। अब देखो दोनों जगह 3 दिख रहा है, न्यूमरेटर में दिख रहा है, तो कॉमन ले लो, क्या बनेगा? 1/81। आई बात समझ में? नहीं आई बच्चों को?
Yes, sir. Yes, sir. अब देखिए x टू द पावर 4 को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1/9 का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ब्रैकेट के अंदर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी एक जगह और ए प्लस बी ए माइनस बी बन सकता है, पता है कहाँ? ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 तो सेम ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर बन गया ये 1/3 स्क्वायर, 1/9 को 1/3 का स्क्वायर, यानी कि फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? लग जाएगी आइडेंटिटी ए प्लस बी माइनस बी फिर से, तो लगा देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 सेम ऐसे लिख दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोले तो ए प्लस बी एक्स माइनस एक्स प्लस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1/3, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, स्क्वायर ब्रैकेट हटा दो, कोई काम नहीं है इसका। So finally your answer is 3 into x square plus 1/9 into x plus 1/3 into x minus 1/3। सही है? सही लगा क्वेश्चन? ये जोर से लग गया? सर मेरा यही आंसर है। वेरी गुड, एक्सीलेंट कार्तिकेय। यस आयुष। Sir, I have a doubt. यस बेटा Sir, बताइए। पहले वाले ब्रैकेट में आपने 1/9 को 1/3 स्क्वायर क्यों नहीं किया? यहाँ पर ये फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्यों नहीं करा मैंने, ये पूछ रहे Yes, हो? sir. गुड क्वेश्चन। बिकॉज यहाँ पर बीच में प्लस है माइनस नहीं है। आइडेंटिटी हम कब यूज करते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जब बीच में माइनस होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी होता है, फॉर्मूला पढ़ा है आप सबने। लेकिन क्या आपने कोई आइडेंटिटी ऐसी पढ़ी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है, उसको कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है। इसलिए नहीं लिखा बिकॉज यहाँ पे आइडेंटिटी यूज ही नहीं हो सकती है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर है एक आइडेंटिटी, लेकिन वो तो यहाँ पर केस बन ही नहीं रहा है। ए प्लस बी होल स्क्वायर थोड़ी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है ऑल ऑफ यू। चलिए एमसीक्यू वर्कशीट देने या वैसे वो सिंपल सी वो जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, उस टाइप के एमसीक्यूज। चलो एमसीक्यू ले लो। So it is a combination of algebraic expressions and factorization, ठीक है। ज्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन हैं बस। Only 10 MCQs. Sharing the worksheet. It is there on your screen. Can you all see the worksheet? Please keep your videos on, Yes, sir. everyone. ठीक है, start doing it. 10 मिनट में हो जाएगी, पहले ही हो जाएगी। 7 मिनट में कर लो, 7 मिनट्स में। Excuse me, sir. Yes sir. Sir, this is of which chapter? Algebraic expressions and maybe some questions are from chapter factorization also. हो सकता है दोनों में से हो, देख लेता हूँ मैं। Okay, नहीं, sir. ये तो फिलहाल मुझे सिर्फ algebraic expression के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ठीक है। आई डोंट थिंक देयर इज फैक्टराइजेशन आल्सो है, मतलब हो सकता है हो एक आध क्वेश्चन, ठीक है वही है, मतलब दो सिमिलर टाइप के चैप्टर्स हैं। ओके स्टार्ट डूइंग ऑल ऑफ यू।
You done, everyone? No, sir. I only So have on to the eighth one. Yes, बेटा डिस्कस करें. All of you, have you all done? Yes, sir. Okay, ठीक है. शुरू करते हैं. First question, in a polynomial, the exponents of the variables are always क्या होते हैं polynomial में? Exponents आपने क्या देखे हैं? Integers देखे हैं, positive integers देखे हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स या नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स? आंसर इज नॉन नेगेटिव. ये आपने पढ़ा नहीं है एक्चुअली, आपके सिलेबस में नहीं था, शायद बुक में ये चीज मेंशन नहीं थी. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं एक्सपोनेंट्स में. पॉलिनोमियल्स उनको बोलते हैं जहां पर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं पावर्स में. ठीक है, ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स बोला जाता है जहां पर पावर्स आर ओनली होल नंबर्स, यानी कि नेगेटिव भी नहीं होंगी पावर्स और पावर्स कभी फ्रैक्शन में भी नहीं होंगी. ठीक है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पर पावर्स नेगेटिव भी नहीं है, वेरिएबल्स की पावर्स नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शंस भी नहीं है, ऐसे जो वेरिएबल्स होते हैं जहां पर सिर्फ होल नंबर्स मिलेंगे आपको, उनको बुलाते हैं पॉलिनोमियल्स. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ये वैसे बुक में नहीं है इसलिए नहीं आएगा, डोंट वरी. ऐसा कुछ नहीं होगा आपके उसमें जो बुक से रिलेटेड नहीं है. बुक में या तो होना चाहिए या उस टाइप का होना चाहिए, तभी एग्जाम में आएगा. सो डोंट वरी. Okay. Which of the following is correct? A minus Sir, B whole option B. square Sir, is option equal B. to, Option very B. easy, option B. Minus B. The sum of minus 7PQ and 2PQ is, in दोनों Sir, का option sum D. Sir, D. minus Sir, 5PQ. option D. If we subtract this from this, x square minus x square y square में से minus 3x Sir, square y option square D. minus करेंगे तो प्लस का 4x square y square बन जाएगा. ऑप्शन डी. ठीक है, कैसे? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से माइनस करिए माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो देखिए ये माइनस माइनस 2 बार हो गया, प्लस बन गया. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर बन गया, यानी कि 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक टर्म एज 4m स्क्वायर एन स्क्वायर, इसकी लाइक टर्म कौन सी है? ऑप्शन ए बहुत इजीली दिख Sir, रही है, option A. बाकी सारे अनलाइक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल? बाइनोमियल क्या होते हैं? जहां पर दो टर्म्स होती हैं. तो कौन से एक्सप्रेशन में आपको दो? Sir, option A. ऑप्शन ए. Sir, option A. Option A. ऑप्शन ए इज अ बाइनोमियल 7a प्लस ए. मुझे तो ऑप्शन डी भी बाइनोमियल दिख रहा है. ऑप्शन डी भी तो बाइनोमियल है. अगर हम ब्रैकेट ओपन कर दें, दिस बिकम्स 6a स्क्वायर प्लस 6b. ऑप्शन डी भी बाइनोमियल, ऑप्शन ए भी बाइनोमियल. यहाँ तो दो आंसर सही है. चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इग्नोर कर दीजिए, कुछ गड़बड़ हो गई है आपको ऑप्शंस देने में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ a माइनस बी प्लस ए बी प्लस सी माइनस बी सी एंड सी माइनस ए सी, क्या आया सम इन तीनों को ऐड करके? ए और ए कट गए, माइनस बी से बी कट गया, यहाँ पर प्लस सी से प्लस सी नहीं कटेगा, 2c बन जाएगा. और ए बी 2c प्लस ए बी माइनस बी सी, 2c प्लस ए बी माइनस बी सी, 2c प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी. ऑप्शन ए. इज इट करेक्ट ऑल ऑफ यू? सबका यही Yes, आया है? sir. ठीक है. Yes, sir. प्रोडक्ट ऑफ Yes. द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, सॉरी Sir. फॉलोइंग मोनोमियल्स, इनका प्रोडक्ट. C option. Sir, option C. 7 into 7 49 into 4 196 हो गया. 196 पॉजिटिव आंसर आएगा. 196 p Yes, sir. First option. स्क्वायर First q की पावर 4. 196 ये ऑप्शन ए, p स्क्वायर q की पावर 4.
एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ दिस ब्रेथ दिस, यानी कि मल्टीप्लाई करना। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ गया 24 AB 24 क्यूब। AB square. AB AB square. क्यूब, AB Sir, क्यूब, option B. ऑप्शन Yes, बी sir. 24 AB क्यूब आएगा। लास्ट वन, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, क्यूबॉइड शेप का बॉक्स है रेक्टेंगुलर, उसी को बोलते हैं क्यूबॉइड, विद लेंथ 2AB, ब्रेथ 3AC एंड हाइट 2AC, यानी कि अगेन मल्टीप्लाई करना है तीनों को। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो क्या आया मल्टीप्लाई And करके? A option. A option. Sir, 12A square B cube. A square B cube. B square. ए क्यूब दिख रहा है मुझे, तो आंसर आता हुआ 12A क्यूब BC स्क्वायर, BCC square. B square. 12A Yes, क्यूब sir. BC स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए 12A क्यूब BC स्क्वायर इज द आंसर। ओके एवरीवन। Yes. Okay.